बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जहां सतलुज और ब्यास नदियों ने इससे जुड़े गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। खबर पंजाब के फिरोजपुर जिले के रुकने वाला गांव से है। रुकने वाले गांव में आई बाढ़ ने धान की फसल और कई घरों को तबाह कर दिया है। इसमें जान का नुकसान कम हुआ है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जिससे कई घरों के जानवर भी पानी में बह गए हैं। लोग पानी को गांव में घुसने से रोकने के लिए लगातार बांध बना रहे हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार लगातार यहां का दौरा कर सेवा कर रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी यहां सेवा की है। आइए सुनते हैं प्रेस को क्या कुछ जानकारी मिली। एसबी न्यूज 24/7 स्टेट ब्यूरो चीफ पंजाब गुरलाल सिंह बारोला की रिपोर्ट में। ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਮਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਆਪਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਲਗਭਗ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ? ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ 4 ਡਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। 4 ਡਰਮ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪੁਰਜੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ 7-8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਭ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਭੂਤੀ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ। ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਾਲ,
ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਲਾਈਵ 'ਚ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਖਾਣ, ਯਾਨੀ ਨੋਚਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨੋਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲੋ ਐਰਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਢਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਬੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਨੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਢਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਢਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਦੇਖੋ 75% ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ 25% ਧਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਖੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਮਾਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਖੜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ कैमरामैन के नाल SB न्यूज़ 24 तो गुरलाल सिंह। बड़ी खबर आगरा से मजदूरी के रुपए मांगना व्यक्ति को पड़ा भारी। पिता पुत्र ने मिलकर व्यक्ति से जमकर की मारपीट। रास्ते से निकल रहे राहगीर ने बनाया घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने थाना रकाबगंज में दी तहरीर। पुलिस जांच में जुटी। थाना रकाबगंज के ईदगाह कटघर की घटना। बड़ी खबर आगरा से, जहां आगरा गोकुल नगर में यमुना का पानी पहुंचा। कई मकान पानी की वजह से हुए जलमग्न। पानी भरने की वजह से एक मकान हुआ धाराशाही। मकान के गिरने की लाइव वीडियो आया सामने। घर के सभी सदस्य सकुशल निकले बाहर। प्रधानमंत्री योजना के तहत हुआ था मकान का निर्माण। आगरा के पौंच नगर के गोकुल नगर की है पूरी घटना। दुनिया में मनाया जाता है मोहब्बत का पहनावे, और भाईचारा बनाए, मोहब्बत बनाए, हिंदुस्तान बनाए और हिंदुस्तान को भाईचारा बनाए, मोहब्बत बनाए और सबको प्रशासन को सुधारना, काम करने वालों को सुधारना, भाईचारा नाम मोहब्बत।
बढ़िया बना रहे हो देख रहा हूँ ध्यान में रखते हुए एक बाई चौकी से और पूरा लोग भारे पर आता है, भारे से फिर हम सब लोग मिलकर जामा मस्जिद जाते हैं। आज इस मुबारक मौके के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे देश के अंदर अमन और अमान कायम रहे, सब लोग प्यार मोहब्बत और राम की नगरी अयोध्या में डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ सोमवार को हुआ। सरोजनी देवी अकेडमी का जनपद और अंतर जनपदीय वॉलीबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सोमवार महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने किया। सरोजनी देवी अकेडमी द्वारा सरोजनी देवी स्मारक में आयोजित 5वें जनपदीय व अंतर जनपदीय वॉलीबॉल 2 दिवसीय प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए सरोजनी देवी अकादमी के प्रबंधक व जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव रमेश कुमार उर्फ ठेकेदार ने बताया कि अंतर जनपदीय टूर्नामेंट में विजेता टीम को 21,000 रूपए, उप विजेता टीम को 11,000 रूपए की नगद राशि और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं जनपद स्तरीय टीम के विजेता को 5,000 और उप विजेता टीम को 3,100 रूपए और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जनपदीय अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। हमारे महानगर में आजकल खेल संबंधी गतिविधियाँ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर आयोजित हुआ है। तो इसको अच्छे से प्रतियोगिता संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकार भी खेल को बढ़ावा दे दी है लगातार। बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग भी खुद अयोध्या में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने वाले हैं। टूर्नामेंट से जनपद के खिलाया जा रहा है। जनपद के बच्चे जो आधार लगाया जा रहा है कि आधार के माध्यम खेलेंगे, जनपद अयोध्या के ही लड़के खेले, बाहरी बच्चे नहीं खेल पाएंगे। और अंतर जनपदीय भी हो रहा है, जो राज्य स्तरीय हो रहा है, कल से हो जाएगा शुरू सुबह से। कितनी टीमें यहाँ पर आए, कितना दिवसीय गेम चलेगा? हमारी 8 टीमें राज्य स्तरीय की हैं और 10 टीमें जो है इसमें है जनपदीय की टीम। किस तरह से इसका प्राइज मनी है राज्य जनपद स्तरीय का 5100 रुपया और 3100 रुपया सेकेंड को, और 21,000 अंतर जनपदीय को, 15,000 उप विजेता को। और कब दिया जाएगा? खेल के प्रति हम लोग बढ़ाया दे रहे हैं कि बच्चे जो है आगे बढ़े, हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेज में जाएं, खेल के लिए अपना जो है जाएंगे। उसके बाद नौकरी में डायरेक्ट सर्विस पर जाएंगे। पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, जैसे और सेना में हुआ। जब खेलेंगे आगे जाएंगे, इंटरनेशनल में पहुंचेंगे। ये खेल के आगे बढ़ावा मिलेगा। खेल के जनपद रमेश कुमार ठेकेदार, जिला वॉलीबॉल संघ अयोध्या। बड़ी खबर संभल से। संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर मौत। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने बाइक सवार को मृत्यु बाइक बताकर सभी के लिए किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाइक सवार सुबह करीब 3 बजे किसी होटल पर काम कर लौट रहे थे अपने घर गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गुन्नौर कस्बा गुन्नौर पुलिया के पास की घटना। सत्यपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर शिक्षकों के लिए टेट की बाध्यता विषयक संशोधित अधिनियम पारित करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग को लेकर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा जनपद सिद्धार्थनगर ने जिला संरक्षक हरिमोहन सिंह श्रीनेत के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को देश के लाखों शिक्षकों जिनकी सेवा के 20 से 25 वर्ष बीत चुके हैं, उनको आगामी 2 वर्षों में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश पारित किया है। 2 वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले शिक्षकों को सेवा से विरत करने की बात कही गई। ऐसी स्थिति में देश के 30 लाख से अधिक शिक्षक व उनके परिवार के सामने जीवन यापन का संकट दिखाई देने लगा है। ज्ञातव्य हो कि अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) और 23(2) में अधिनियम लागू होने की तिथि 23 अगस्त 2010 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों का टेट उत्तीर्ण करने का निर्देश नहीं दिया गया है। एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के अतिरिक्त टीईटी को भी अनिवार्य बताया गया है। ऐसे में लगातार ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन कार्यक्रम में यूटा जिलाध्यक्ष अभय कुमार पांडे, जिला महामंत्री प्रकाश नाथ त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष पंकज यादव, उपाध्यक्ष यशी शर्मा, रविनाथ त्रिपाठी, अमित कुमार, मीडिया प्रभारी कुमार शिवम, प्रमोद कुमार पांडे, अबूबकर अंसारी, उपेंद्र कुमार, घनश्याम यादव सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। विचार होना चाहिए। यह जीवन और आजीविका का प्रश्न है। इस पर
संवेदनापूर्ण कोई निर्णय होना चाहिए, जिससे लाखों, हमारे प्रदेश में लगभग 5 लाख शिक्षक परिवार उससे प्रभावित होंगे और पूरे देश में लगभग 25 से 30 लाख शिक्षक परिवार प्रभावित होंगे। तो यह सरकार और राजा का यह धर्म होता है कि वो अपने प्रजा, अपने देशवासियों के जीवन और आजीविका का संरक्षण करें, उन्हें भय तनाव मुक्त वातावरण दें, सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। आगरा से आगरा में यमुना के रौद्र रूप से निचले आके हुए जलमग्न एतमादपुर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह लगातार कर रहे हैं दौरा। संपत्ति गढ़ी, गिजरौली, राज सिंह की गढ़ी, गोकुल नगर, अंजना एनक्लेव सहित कई क्षेत्रों का भाजपा विधायक कर रहे हैं निरीक्षण। बाढ़ में किसानों की फसलों और मकानों के नुकसान को सरकार से दिलाए मुआवजा। आज सुबह एक मकान गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए बोले भाजपा विधायक, पीड़ित परिवार की बेटी की होनी है नवंबर में शादी, क्षतिपूर्ति के साथ बेटी की शादी में भी मदद कर दिया भरोसा। प्रशासन की टीम लगातार नुकसान के आकलन को करेगी सर्वे। हाँ, निश्चित रूप से हमारा शहर का कुछ हिस्सा है, कुछ हमारी ग्राम सभाएं हैं, हमारे अधिकारी हर जगह तैनात हैं राजस्व के। हम लोग भी प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, एक गांव रह गया वहां भी जाऊंगा। हमारे अधिकारी भी हैं और अभी मदनपुर में हमारी पूरी स्वास्थ्य के अधिकारी वहां कैंप लगा है, दवाई भी बट रही है, राजस्व के भी अधिकारी हैं मौके पर। और उम्मीद है कल से पानी शायद घटना शुरू हो जाएगा। तो मथुरा से अभी जो रिपोर्टें मिल रही हैं, उम्मीद है कि कल से पानी घटेगा। हमारे किसानों की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कॉलोनियों में भी पानी आ गया है, घाट पर सब जगह कोशिश हो रही है कि पीड़ित जो भी इस पानी जो जमुना का आया है, बाढ़ से जो पीड़ित हैं, उन सबकी अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार स्तर से, अपने स्तर से भी जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। अभी एक पौंडी नगर में मकान गिरा है, तो वहाँ हम अधिकारियों के साथ सवेरे गए थे। अधिकारी हमने पहले भी भेजे थे, तो उनकी आर्थिक मदद सरकारी स्तर पर भी होगी और हम भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक बहन है, उसके पास और कोई उसके घर में है नहीं, माता है खाली, उसकी शादी भी नवंबर में होने वाली थी। अभी भी मदद करेंगे और शादी में भी मदद करेंगे, उस परिवार की पूरी मदद की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से, यमुना के रौद्र रूप से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 100 बीघा से अधिक खेतों में भरा यमुना का जल, लाखों की फसल हुई नष्ट। शनिदेव के मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं के मंदिर जाने से लोगों को किया मना। गौशाला के अंदर 5 फुट तक भर गया यमुना का जल। उरकता रेणुका धाम गौशाला में पहुंच गया यमुना का पानी। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, गौमाता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लक्ष्मण शर्मा की खबर। मेरा नाम गौसेवक अवधेश पंडित जी। कहाँ पर ये गौशाला है और क्या जल स्तर, क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं? ये गौशाला यहाँ रेणुका धाम शनिदेव मंदिर रुनकता पर स्थित है और यहाँ करीबन 250 से 250 के बीच में गौवंश हैं, छोटे बड़े सब, और जो भी बीमार घायल जो गौमाताएं होती हैं उनको लाया जाता है जी। फिलहाल जल स्तर यहाँ पे जो है करीबन गौशाला के अंदर 4 से 5 फुट का अंदर जल भरा हुआ है, पानी जमना। क्या समस्या आई? क्या कुछ किसी अधिकारी ने कुछ संज्ञान लिया? किसी नहीं, सभी अधिकारी आ रहे हैं ब्यौरा करने, सब देखने के लिए आ रहे हैं। सभी अधिकारी ख्याल रखे हुए हैं। थोड़ा भूसा बिक गया है गौ माताओं का, उधर जो गोडाउन में उधर स्टोर तक मतलब भूसा में पानी पहुंच गया था, तो थोड़ा भूसा खराब हो गया गौ माताओं का। जल स्तर जो बढ़ा है, कब से कितने दिन से बढ़ गया एकदम? ये 4 दिन से तो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। 4 दिन से पहले यमुना मैया वहाँ तक थी और 4 दिन के बाद में 24 घंटे में इतनी स्पीड में जल स्तर बढ़ा है। अब गायों के लिए कहाँ व्यवस्था बनाई गई? फिर गौ माताओं के लिए ऊपर विचित्र टीले वाले सरकार पर अभी लेंटर डाला है। अप्रैल मई में पिछले महीने लेंटर डलवाया था 8,500 स्क्वायर फुट में, तो उसमें गौ माताएं को शिफ्ट किया गया।
इटावा चक्करनगर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसमें संगठन के विस्तार एवं मजबूती पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से चक्करनगर तहसील के लिए नए तहसील अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजय कुमार रा ने की। चक्करनगर तहसील अध्यक्ष पद के लिए आनंद पांडे को सर्वसम्मति से चुना गया। नियुक्ति के बाद उन्होंने संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और पत्रकार हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया है। जिला अध्यक्ष अजय कुमार ने नए तहसील अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार गणेश ज्ञानार्थी, ब्रजेंद्र तैमूरी, सुनील यादव, सौरभ सिंह, अनुराग प्रमोद दीक्षित, आश मोहम्मद, आशीष शर्मा, वंदना यादव सहित अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। बड़ी खबर आगरा से मजदूरी के रुपए मांगना व्यक्ति को पड़ा भारी। पिता पुत्र ने मिलकर व्यक्ति से जमकर की मारपीट। रास्ते से निकल रहे राहगीर ने बनाया घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने थाना रकाबगंज में दी तहरीर। पुलिस जांच में जुटी। थाना रकाबगंज के ईदगाह कटघर की घटना। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज सुंदरबनी की पहचान के रूप में महान संत अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वमातानंद सरस्वती जी महाराज ने आज अपने डंडेसर स्थित आश्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का मकसद जिला राजौरी रियासी तथा जम्मू के क्षेत्र सुंदरबनी के साथ लगते हैं तथा पहाड़ी क्षेत्र है, जिनमें भारी स्लाइडिंग होने के कारण लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ रहा है। वहीं भारी मूसलाधार बारिश के कारण जिन लोगों के घर ध्वस्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को जिन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहा है, उन सभी लोगों के लिए ज्ञान गंगा मठ, जो सुंदरबनी का एक बहुत बड़ा आश्रम है जिसकी पहचान देश विदेशों में है, उसके दरवाजे पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा खोल दिए गए हैं। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अटल पीठाधीश्वर राष्ट्र स्वामी विश्वमातानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि जितने भी लोग इस समय आपदा से ग्रस्त हैं तथा जिन्हें रहने के लिए अपना घर नहीं है, उन सब के लिए हमारे सुंदरबनी स्थित ज्ञान गंगा आश्रम के दरवाजे खुले हैं। हम उन सब लोगों को निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवाएंगे, बिस्तर भी उपलब्ध कराएंगे, रहने सोने खाने पीने सहित सभी सुविधाएं देंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहकर आप आध्यात्म के साथ साथ जीवन का उत्तम आनंद ले सकते। उन्होंने कहा कि यह देश हमारा है और ये लोग हमारे हैं और आपदा के समय में अपने लोगों के साथ खड़े होना, उनको आश्रय देना हम सबका कर्तव्य है। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। सभी को ज्ञात है कि इस समय बहुत अधिक मूसलाधार बारिश के कारण और बादल फटने के कारण सभी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। जैसा हम लोगों ने आप लोगों के न्यूज़ चैनलों के अनुसार सुना है, बहुत लोगों के घर गिर गए हैं और बहुत लोग परेशान भी हैं। हमारे जो है स्वामी विश्वात्मानंद सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि इस प्रकार के जिनको रहने को मकान बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे लोग सुंदरबनी में आकर के अपना घर का सामान, बच्चे रहना सब कर सकते हैं। उनको कमरा भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लैट्रिन बाथरूम अटैच, और उनको जो है और व्यवस्था खाने पीने की भी वो वहीं करें, बहुत अच्छा वो भी करी जाएगी। और जब तक उनका होता पुनर्व्यवस्था, तब तक बड़ी खुशी के साथ बड़े सब रह सकते हैं। और अखनूर की तरफ भी बहुत नुकसान हुआ है और वहाँ पर भी हम लोगों का एक छोटा आश्रम है देवीपुरा में। तो जो भी इस प्रकार के जिनके मकान घर बिल्कुल नहीं रहे, वहाँ पर वो भी आकर के जब तक उनकी व्यवस्था होती 2, 4, 6 महीने भी बड़े आराम से रह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बिल्कुल ही किसी का मकान नहीं रहा है और समर्थ नहीं है वो बनाने में, जो शीघ्र इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, वो इसी प्रकार से आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ पर ट्रस्ट में भी नंबर दिया रहता है
और साइड पे भी वो बता सकते हैं, तो उन्हें हम लोग जैसे भूचाल के समय पुंछ में हम लोगों ने 12 बाई 15 के शेड बना करके दिए थे जिनको बिल्कुल मकान नहीं रहे थे। इस प्रकार की व्यवस्था भी जो असमर्थ हैं, जिनको कोई कमाई का सोर्स नहीं है, उन्हें वो भी 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही हम लोग बना करके उन्हें एक थोड़ी देर के लिए भी शांति से अपना रहने के लिए, बच्चों को घर से सोने के लिए बना के दे सकते हैं। वो अप्लाई करें, उस पर संदेश भेजें कि हमारा कुछ नहीं, वहाँ के देखेंगे अगर किसी का कुछ भी नहीं है रहने के लिए, उसे वो भी बना के दिया जाए। और इसके साथ साथ में अगर जोरी की तरफ भी है, वहाँ भी हम लोग व्यवस्था उनकी कराएंगे। और ये कोई मत संकोच करें कि कोई ख़ास जाति के लिए, मजहब के लिए, क्योंकि पीछे बहुत लोग कहते भी रहे हैं, कई लोग अपनी जाति अपने मजहब की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई फ़र्क भेदभाव नहीं है। हर मजहब, हर जाति का व्यक्ति, हर पंथ का व्यक्ति जिन्हें चाहिए वो आकर के रह सकते हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी विशेष मजहब के लिए नहीं, सभी के लिए ही ये रास्ता खुला है। क्योंकि हमारे ट्रस्ट का पहले से ही इस प्रकार का नियम है कि किसी के मजहब जाति को देख करके ट्रस्ट अपने फंक्शन नहीं करता है, सामूहिक सबके लिए ही ये करते हैं। इसीलिए सभी जाति, सभी मजहब आकर कर सकते हैं। उन्हें हर प्रकार की रहने की भी होगी, बच्चे सब रह सकते हैं। भोजन आदि की व्यवस्था वो अगर इधर आश्रम से एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी होगी। बहुत खुशी की बात होगी, हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी कि अगर वो जिस प्रकार से, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल 200 महात्माओं के साथ यात्रा की है कि ठिकाना कहीं रहने का नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है। इसीलिए ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है। और हम तो बाकी पब्लिक को भी कहते हैं कि ऐसे अवसर पर आगे आना चाहिए। जिसको भगवान ने समर्थता दी है, आगे आकर के ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। कोई ये बात नहीं है कि किसी के पास कोई कमी है, लेकिन एक किसी का सब घर बार जब गिर जाता है तो व्यक्ति मेंटली ही बिल्कुल पजल हो जाता है। और मौसम भी ऐसा है, इस मौसम में दोबारा व्यवस्था होने में भी महीनों लगेंगे। इसीलिए बाकी सब भक्तों को हम आग्रह करते हैं, लोगों को भी कहते हैं, दूसरों को भी अगर समर्थ हो, सभी ऐसे लोगों की व्यवस्था में रहने में सहायता करो। ये हमारी इंसानियत का चिन्ह होगा। अगर कोई मनुष्य केवल अपने पेट भरने के लिए जीता है, मेरा ख्याल है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक कुत्ता सूअर भी जो गंदगी की, नाले की गंदगी खाता है, वो भी अपना पेट भर लेता है। पेट भरने में अपने जीवन की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं समझनी चाहिए, कोई खुशी नहीं समझनी चाहिए कि हम पेट भर के बड़ी गाड़ी, बड़े कमरे, बड़े एसी महलों में सो गए। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं, कोई मनुष्यता की बात भी नहीं, क्योंकि हमें जीवन मिला है। परमात्मा ने अगर समर्थता दी है, देखो बाहर आप सुनोगे कितने कितने बड़े लोग, मैंने ही देखा है, हम फंक्शन करते हैं, कितने अच्छे अच्छे संपन्न सब लोग हाथों से भी, धन से भी सेवा करते हैं। इसलिए सभी को ऐसे अवसर पर उनकी सहायता करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, मदद करनी चाहिए,
कि उन्हें इस प्रकार की फीलिंग ही ना हो कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। तो सभी को आगे कदम उठाना चाहिए। स्वामी जी, जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी लोगों के मकानों को नुकसान हुआ, मकान नहीं रहा है जी, हमारा भी कोई ट्रस्ट का कोई बड़ी फिक्स इनकम नहीं है। जी जी, हम लोग इतनी संस्थाएं चलाते हैं, इन सब संस्थाओं में हमें योगदान देना ही पड़ता है। हर साल ये टीचर पूछो, इनको सैलरी पूरी कभी नहीं होती है, स्कूल से हमसे लेते ही हैं। दूसरे इंस्टीट्यूशन है, उनको भी कितने 50 लाख देना पड़ता है। फिर भी ऐसे कार्य के अंदर हेल्प जरूर करनी चाहिए। जिनको बिल्कुल नहीं रहा है उनको हम लोग शेड बना के फौरी तौर पर कि अपना सामान सुरक्षित रखें, बच्चे बिठा सकें बारिश में, वो दे देंगे। स्वामी जी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये आपके ट्रस्ट पे? ये हाँ, हमारे ट्रस्ट में कर दें। हमारा नंबर भी उसमें दिया है, आप दे दो। हमारे ट्रस्ट का साइड है, उस पर भी दे दो। तो कहीं भी आप लोगों को देते हैं, आप लोग हम लोग को पहुंचा दो। कुछ लोग संकोच करते हैं महाराज जी कहीं बाहर जाने में, क्या जो लोग नहीं आ सकते अपना घर छोड़कर, क्या वहाँ जाके उनको राशि या कुछ राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा आपकी संस्था की तरफ से, आपके ट्रस्ट की तरफ से? आवश्यकता के अनुसार वो भी हम लोग इंतजाम करेंगे जी। फिलहाल ये तो हमने कर लिया है कि जिनके बिल्कुल नहीं है वो आए। युवकों को नदी के तेज पानी के बहाव में बहा ले गई। कल रात को प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आई थी। रेस्क्यू टीम ने रात में कोशिश की, पर लेकिन काफी अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। लेकिन आज सुबह से रेस्क्यू टीम तैयार है, अपनी कोशिशें कर रही है, पर लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही है। यहाँ ग्रामीणों से जानते हैं कि प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है। प्रशासन पुलिस की पूरी मदद मिल रही है। सिविल प्रशासन से न तो सुबह से यहाँ एडीएम साहब आए हैं, न एडीएम साहब है। कल की घटना हुई है, डीएम साहब तक 2 बार कॉल भी कर चुके हैं, डीएम साहब का भी कोई संज्ञान नहीं है। एसओ कागारोल अपनी जो है पूरी टीम के साथ में लगे हुए हैं, रात को भी लगे रहे, सुबह बेचारे 6 बजे से फिर लगे हुए। और यहाँ सिवाय एसओ कागारोल के अलावा और किसी आदमी का यहाँ कोई बस्चर दिखाई नहीं दे रहा है कि जो ग्रामीणों की मदद कर सके। ग्रामीण जन बेचारे इस आशा में बैठे हुए हैं कि बॉडी मिल सके। अकेले एसओ क्या कर सकते हैं? यहाँ एडीएम साहब आराम से फोन पे बात की तो उन्होंने कहा मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग के बाद आऊंगी। और कोई उच्च अधिकारी आना ही नहीं चाह रहा है। उनको यही नहीं लग रहा है कि घटना नहीं हुई है, उनको तो ये है कि घटना ही नहीं हुई है। 2 बच्चे 18 और 19 साल के बच्चे गायब हैं। कम से कम प्रशासन को ये देखना चाहिए, 10:30 11 बजने को जा रहे हैं तो अभी तक कोई यहाँ सिविल सर्विस से एडीएम नायब कोई यहाँ मौजूद ही नहीं है। क्या करें? अच्छा, ये घटना जो हुई है, जो आज ये पहली बार हुई है? नहीं, हर साल घटनाएं होती है। 5-4 महीने पहले भी ये घटना हुई है। मतलब साल में 2-3 बार घटना हो ही जाती है। किसी जनप्रतिनिधि किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कोई, और प्रशासनिक का तो कोई ध्यान ही नहीं है। ये तो हर साल की है, साल में 2-3 घटनाएं हो ही जाती हैं यहाँ। ये घटना होने का कारण क्या है? किस वजह से ये घटनाएं होती हैं? ये पुल छोटा है, यहाँ नीचा पुल है, पानी का बहाव है, और अगर पुल बने तो ऊंचा, तो यहाँ लोगों को आने जाने में करीब 50 गांवों का रास्ता जंगारा को छोड़ता है, आना जाना रहता है। यही मुख्य मार्ग है जनता का आने जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। तो जो जंगारा आ सके आएगा तो कम से कम 15 किलोमीटर घूम के आएगा। तो इसलिए यही रास्ता मेन रास्ता है इन गाँवों से जोड़ने का। जो अपने गाँव में 15-20 गाँव पड़ते हैं, 7 गाँवों का रास्ता है, सीधा जाकर के मड़ाकोर पर जाके निकलता है, दक्षिणी बाईपास को जाके जोड़ता है, अकोला के लिए जाता है, यहीं से बनेला बीच से करावली के लिए जाता है। मुख्य मार्ग है, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ। क्या इससे पहले ग्रामीणों ने किसी उच्च अधिकारी को या अपने जन प्रतिनिधियों को कभी इस चीज की जो घटनाएं होती है, जो सुनाती है, उसको कभी अवगत नहीं कराया? सब लोगों को पता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये चौड़ीकरण सड़क का हुआ है। बाकी काम हो चुका है, जंगारा में काम रह गया है। पुल का भी बता रहे हैं कि पुल का टेंडर हो चुका है। 2 साल से यही बता रहे हैं कि टेंडर हो गया है, पुल बनेगा, लेकिन यहाँ मौके पर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये स्थिति है यहाँ की। आपका नाम? मेरा नाम तोनवीर सिंह है, पूर्व प्रधान जयगारा। ये समस्याएं होती है बार बार में,
1 महीने पहले लेटेस्ट समस्या हुई थी, लेकिन प्रशासन शासन का कोई ध्यान नहीं था इस तरफ। 1 महीने पहले भी यहाँ एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। अभी लेटेस्ट ये 2 बच्चे हैं, 15-16 साल का एक मेरे गाँव का बेटा है, एक बसिया जोतराज का है, जिसकी शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। लेकिन सिवाय एसओ काकारोल के अभी सुबह से यहाँ किसी भी अधिकारी का यहाँ आना नहीं हुआ है। मेरी 2 बार डीएम साहब से बात हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ किसी तरह की मदद भेज रहे हैं। रेस्क्यू टीम कितना काम कर रही है? रेस्क्यू टीम अपना बराबर काम कर रही है। एसओ काकारोल भी उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली गांव जंगारा की खारी नदी के तेज उफान में 2 लोग बहे। एक युवक और एक किशोर नदी के तेज बहाव में बहे। गांव के लोग गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटे। दोनों बैठे थे इको कार में। कार के अनियंत्रित होने पर कार से नदी में कूदे। सूचना मिलने पर पहुंचे स्थानीय पुलिस, क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल, सांसद पुत्र शुरवीर चाहर भी मौके पर। एसडीएम किरावली थाना कागरौल, पुलिस थाना किरावली, पुलिस एसपी सैया, एसपी अचनेरा, पीएससी और रेस्क्यू टीम मौजूद। स्टीमर से लगातार 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 घंटे बाद भी नहीं लगा दोनों का कोई भी सुराग। प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। मामला यह है कि यहाँ पे 3 लड़के, एक्चुअली 2 नहीं 3 लड़के थे जो साइकिल से आ रहे थे और यहाँ पे क्रॉस करते समय एक गाड़ी आई। गाड़ी पर बच्चों ने सोचा कि गाड़ी पे बैठ करके हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, वो इजी रहेगा, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट हुई। उसी के डर से तीनों बच्चे कूद गए। लेकिन एक बच्चे को चूंकि तैराकी आती थी तो वो तैर करके दोनों बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो बच नहीं पाए बच्चे, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज था। एक बच्चा तो निकल आया, बाकी 2 बच्चे पानी में बह गए हैं और जिनके लिए रेस्क्यू टीम पूरी लगी हुई थी वो सर्च की है। क्योंकि रात का समय होगा, विजिबिलिटी इस समय बता रहे हैं 0 है। फिर सुबह से हम पूरी टीम लगाएंगे ताकि बच्चों को सर्च किया जाए। जिसमें से एक लड़का जो है वह बसैया जोतराज का है, उसकी आयु लगभग 26 वर्ष है, उसकी विवाहित है। और एक लड़का हमारे जंगारा का है, उसकी आयु लगभग 15-16 वर्ष है। मैम, ये जो समस्या है बारिश के दिनों में खारी नदी के जितने भी नीचे पुल है सभी पर है। प्रशासन बोलता है कि हमारे सुरक्षा के पुख्ता हमने कर रखे हैं, पर लेकिन ये ग्रामीणों ने कई बार ये मुद्दे उठाए हैं कि ये पुल ऊंचे होने चाहिए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई कभी? जी देखिए, ग्रामीणों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि पानी का बहाव जो था कल के पहले कम था, कल अचानक पानी का बहाव ज़्यादा हुआ है और जो कि रिस्की भी था। और यहाँ पर पुल बैरिकेटिंग के लिए प्रधान से कह दिया गया है, पर प्रधान अभी तत्काल बैरिकेटिंग दोनों साइड से लगवा रहे हैं। और बाकी गाँव में भी प्रशासन द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि नदी किनारे जहाँ बहाव इतनी तेज है वहाँ कृपया बच्चों को चाहे स्वयं न जाए, प्रयास करें कि वहाँ न जाए। संबंधित ब्लॉक को भी मेरे द्वारा सूचित कर दिया गया कि तत्काल यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। जैसे बच्चों के डूबने की जानकारी हुई, यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रयास किया। स्थानीय लोगों के साथ साथ जैसे ही प्रशासन को मालूम पड़ी, तुरंत तैराकियों की टीम आई। सीओ साहब बैठे हैं, उनके साथ में यहाँ दोनों इंस्पेक्टर भी आए, एसडीएम साहब भी हैं, सब लोग बैठे। हम लोगों को भी मालूम पड़ी, हम बॉर्डर इलाके में थे, राजस्थान बॉर्डर पे हम थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे। वहाँ से जैसे ही रास्ता मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग सीधे यही आए। तो हमारी संवेदना है कि बच्चों के साथ, और सरकार का मानना है जैसे घटना हुई है उसको तुरंत 2-4 दिन में ही परिवारीजनों को 4-4 लाख रुपए की शासन की व्यवस्था है वो प्रदान की जाएगी। जैसे आज यमुना नदी के किनारे जो भी गांव है, आपने मौके पे जाकर निरीक्षण किया, तो वहां आपने ग्रामीणों को कोई सूचना या जैसे आपने हिदायत दी? हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि भाई कोई किसी का भी बच्चा, चाहे आप नदिया में नहीं नहाए, जमुना में नहीं नहाए, जिससे कि जल स्तर बढ़ रहा है और जान माल का खतरा हो सकता है। सब लोगों ने, हमने जैसा अकबरा में गए, मागरौर में गए, सब लोग कह के आए कि आप लोग कम से कम पानी में नहीं नहाए और पानी के बाद नहीं जाए, और पानी में होकर प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है यहाँ पर? मैं भूपेंद्र इकराम नगर गांव का रहने वाला हूं और प्रशासन का बहुत ही बड़ा सहयोग है यहाँ।
हमारा प्रशासन, एसडीएम साहब, सीओ साहब और विधायक जी और भी क्षेत्रीय लोग, पूरे गांववासी, पूरे सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। अब दुर्घटना हुई है, सब लोग लगे हैं उसमें, पूरा प्रयास है खोजने का। और बेचारे प्रशासन का जितना तारीफ की जाए पुलिस प्रशासन की, उसकी कम है। मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी बॉडी मिले और उनके घर को सपोर्ट की जाए तो बढ़िया अच्छा लगे। पूरे क्षेत्र को क्षति देने वाली घटना है ये। 14 साल का एक लड़का, 18 साल का, 2 बच्चों की जो अभी भाव में जो मृत्यु हो गई है। अभी खोजबीन में जारी है, लेकिन अभी तक किसी की बॉडी अभी मिली नहीं है। और इसके लिए अब आगे की चीजें हैं कि पुल ऊंचा होना चाहिए, वो सब चीजें तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो हुआ है वो बड़ी घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं इस चीज को लेकर संदेश भी मैं दूंगा सबको, जो भी मेरी आवाज जहां तक भी जाए, कि जो बच्चे हैं, जो गांव के लोग हैं, अभी और भी गांव में ऐसी घटना हुई है। आगरा ग्रामीण विधानसभा है, नगला बिंदु और उस साइड जो गांव पड़ते हैं कवीश, तो वहां भी आज सुबह 3 बच्चे ऐसे बह गए पानी में, क्योंकि वहाँ यमुना नदी पड़ती है, तो वहाँ लगे हुए गांव है वो, तो वहाँ जल भराव वहाँ ऊंचा है। तो ऐसे ही ये स्थिति इसकी है। तो जो बच्चे हैं, गांव के जो लोग हैं, वो कम से कम बच्चों को पानी में ना जाने दें, उनको दूर रखें। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। जो प्रभावित जन है उनके लिए सरकार से क्या सहयोग रहेगा? अब जो भी सरकार के जो होना चाहिए उससे हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर हो। धन्यवाद। कभी हादसा हुआ है, किस तरह की अभी यहाँ स्थिति है? देखिए, लगभग 6:30 के आसपास यहाँ सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रेलिंग गिरने की वजह से मंदिर के पीछे बल्केश्वर में डूब गए हैं। तत्काल यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए, विधायक जी, डीएम सर, सब लोग तत्काल आ गए थे और यहाँ पे मेयर भी आ गई और साथ में नगर आयुक्त भी आ गए थे। सबने देखा है और इसमें ये है कि जो कुछ लोग डूबे थे या वहाँ पे फंसे थे, वो तत्काल बाहर निकल आए थे और घरों को चले गए। अभी तक कोई भी व्यक्ति हताहत होने की सूचना नहीं है। जो घरों पे व्यक्ति गए हैं उनको भी बहुत मामूली सी चोटें आई हैं। फिर भी एहतियातन यहाँ पे हम लोगों ने एनडीआरएफ को लगाया है और स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया है। अभी तक वैसे कोई न सूचना है न कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ है। लगातार रात भर यहाँ कैंप किया जाएगा, देखा जाएगा। और जो एरिया है वहाँ नदी के उफान की वजह से अंदर से थोड़ा खोखला हो गया था, इस वजह से रेलिंग गिरी थी। तो इसको देखते हुए एहतियातन वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहाँ पुलिस और नगर निगम के लोग लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। कोई और व्यक्ति गलती से उधर ना चला जाए। इसके अतिरिक्त इस तरह के पूरे आगरा में भी कई जगह पे नदी का उफान है। तो आम जनता से मेरी अपील यही है कि आप लोग ऐसे स्थानों पर ना जाएं, क्योंकि काफ़ी पानी का वो बढ़ गया है, कभी भी कुछ भी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे स्थानों से, जो किनारे वाली स्थान है, रेलिंग वाला स्थान है,